والدہ کو کینسر ہوا تو احساس ہوا کہ جب ہمارا یہ حال ہے تو غریب گھرانوں پر کیا گزرتی ہوگی۔ ریاست مدینہ کا بنیادی محور انسانیت کی خدمت تھا، اسی لیے ہیلتھ انشورنس پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ انشاءاللہ مارچ تک پنجاب کے تمام خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ فراہم کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا نیا پاکستان صحت کارڈ پروگرام اجرا کی تقریب سے خطاب۔ تمام شہریوں کو صحت سہولیات کی یکساں فراہمی تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم کا ویژن انسانی خدمت ہے۔ ان کی ہدایت تھی کہ غریبوں کو لازماً صحت کارڈز دیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اور صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا تقریب سے خطاب۔ قوم یا معاشرے کی ترقی کا انحصار قانون کی حکمرانی پر ہے۔ ایسا نہ کرنے والے ملک غربت اور کرپشن کا شکار ہوتے ہیں۔ طبقاتی نظام تعلیم سے پاکستان کو نقصان پہنچا۔ یکساں نظام تعلیم اور ترقی قومی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا اسلام آباد میں مارکلا ڈائیلاگ سے خطاب۔ نواز شریف کے ادوار میں پولیس سمیت اداروں کو تباہ کیا گیا۔ جعلی مقابلوں میں ہزاروں افراد کا ماورائے عدالت قتل ہوا۔ محکمہ پولیس میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے عدلیہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کے لیے افغانستان میں انسانی بحران سے نمٹنے کے لیے عالمی کوششیں جاری۔ مزید $1.92 افغان مرکزی بینک کو موصول۔ یہ رقم خوراک، صحت اور تعلیم کے شعبے پر خرچ کی جائے گی۔ ترجمان مرکزی بینک۔ طالبان حکومت کا واشنگٹن کی جانب سے افغان شہریوں کو ذاتی رقوم اپنے ملک منتقل کرنے کی اجازت دینے کے فیصلے کا بھی خیر مقدم۔ ملک بھر میں سال کی چوتھی قومی انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ 4 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا ہدف مقرر۔ بچوں کو پولیو کے حفاظتی قطروں کے علاوہ وٹامن اے کی اضافی خوراک بھی دی جائے گی۔ 2,90,000 سے زیادہ ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائیں گے۔ اس کے علاوہ بہاول نگر میں زیر تعمیر اسپتال۔ کوئٹہ کی روایتی گرم چادروں اور چترال کی حسین وادی کلاش کے سالانہ تہوار چاموس کا احوال بھی کیبنٹ ٹاور کا حصہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ کیبنٹ ٹاور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ بلیٹن میں خبریں شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ Today we celebrate International Mountain Day on the theme of sustainable tourism. I'd like to highlight the great beauty and importance of our majestic mountains. But more importantly, I would like to highlight the need to support and empower communities who live on and around these mountains. One way of doing this is through ecotourism. Climate change is real, it is with us now, and we do need to mobilize the political will and the resources that it takes to combat climate change. UNDP stands behind the government of Pakistan in their efforts to combat climate change and also to address other environmental challenges and to become one of the world's leading countries for sustainable development.
بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ریاست مدینہ کا بنیادی محور انسانیت کی خدمت تھا، اسی لیے ملک کے غریب طبقے کے لیے ہیلتھ انشورنس پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ لاہور میں نیا پاکستان صحت کارڈ پروگرام کے پنجاب بھر کے عوام کے لیے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ انشاءاللہ مارچ تک پنجاب کے تمام خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ فراہم کر دیا جائے گا۔ اگر آپ معاشرے میں سب سے بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کے کسی بھی گھرانے میں یہ عالم نہ آئے لوگوں پہ کہ جی ہمارے پاس کیونکہ پیسے نہیں تھے ہم اپنا علاج نہیں کروا سکتے۔ یہ سب سے زیادہ مشکل وقت کسی انسان کے اوپر گزرتا ہے، بچوں کے اوپر اپنے ماں باپ کو دیکھ کے، ماں باپ کو اپنے بچوں کو دیکھ کے۔ اور تب میں نے یہ سوچا تھا کہ اس ملک میں ایک ہی طریقہ ہے، ہیلتھ انشورنس ہو۔ کوئی بھی معاشرے میں غریب سے غریب آدمی بھی اس کو جب اس کے گھر میں کوئی مشکل آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو یہ اس کو خوف نہ ہو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں علاج کروانے کے لیے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ آپ کو تب فلاحی ریاست بنانی چاہیے جب آپ کے پاس پیسے ہوں، لیکن مدینہ کی ریاست میں تو پیسے نہیں تھے۔ تو اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ پہلے آپ ایک ریاست میں انسانیت لے کے آتے ہیں، پھر اس ریاست کے پاس پیسہ آتا ہے۔ جو ریاستیں انتظار کرتی ہیں، ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں، 74 سال سے انتظار کر رہے تھے کہ پاکستان میں جب پیسہ آئے گا تو ہم اس کو فلاحی ریاست بنائیں گے۔ ہماری آبجیکٹو ریزولوشن وہ واضح کہتی ہے کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا، نہیں بنی، کیونکہ جو حکمران تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ جی پہلے پیسہ آئے گا، ہم امیر ہوں گے، پھر ریاست بنے گی، فلاحی ریاست بنے گی۔ لیکن مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا کہ پہلے ایک انسانیت کا نظام آتا ہے، پھر اللہ خوشحالی لے کے آتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے نیا پاکستان صحت کارڈ پروگرام کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ تمام شہریوں کو صحت سہولیات کی یکساں فراہمی تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے شہریوں کو صحت کارڈ کی فراہمی کے لیے 440 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال ڈویژن میں صحت کارڈ کا اجرا پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ آج الحمدللہ کیے گئے اپنے ایک اور وعدے کی طرف ہم اپنا قدم بڑھا رہے ہیں۔ ہم پاکستان صحت کارڈ کا لانچ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ جنوری سے سٹارٹ ہو جائے گا، اور اس میں پنجاب بھر کے تمام جو لوگ ہیں وہ اس میں انشورڈ ہوں گے، اور ان کو 10-10 لاکھ کی جو انشورنس ہوگی ان تمام لوگوں کی ہوئے گی۔ پنجاب کی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ وزیر اعظم کا ویژن انسانی خدمت ہے۔ ان کی ہدایت تھی کہ غریبوں کو لازماً صحت کارڈز دیے جائیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ صوبے کے 85 لاکھ خاندانوں میں صحت کارڈ تقسیم کیے جا چکے ہیں، اور 1 جنوری سے پورے پنجاب کے شہریوں کو صحت کارڈ کی فراہمی کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ صوبائی وزیر صحت کا کہنا تھا کہ پنجاب کے 3 کروڑ خاندانوں کو صحت کارڈ کی فراہمی حکومت کا ہدف ہے۔ عمران خان صاحب کا پہلا حکم تھا کہ ہم کم سے کم وہ جو غربت کی سطح سے نیچے رہتے لوگ ہیں ان کو ہم ضرور کارڈ دے دیں۔ یہ کارڈ بانٹنے کا سلسلہ جو ہے ہم نے 2019 کی جنوری میں شروع کیا راجن پور سے، اور لاہور میں اختتام ہوا جنوری 2020 میں، اور ہم نے 52 لاکھ فیملیز میں بانٹ ڈالے، وہ فیملیز جو غربت کی سطح سے نیچے رہتی تھیں۔ مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے پنجاب کے عوام کو ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کے اقدام کو خوشائن قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ صحت کارڈ کے اجرا سے وزیر اعظم نے عوام کے دل جیت لیے ہیں۔ صحت کارڈ ملے ہیں غریب لوگوں کو، بڑا اچھا ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، یا وہ ایڈمٹ ہوتے ہیں، اسٹے ہوتا ہے ادھر، ان کو میڈیسنز فری لگ رہی ہوتی ہیں، فری علاج ہو رہا ہے لوگوں کا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علاج نہیں کروا سکتے، وہ اس کارڈ کے ذریعے بہت علاج کروا رہے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ سب فری ہو رہا ہے، دوائیاں بھی بہت اچھی مل رہی ہیں۔ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کو جو ہے فیسلٹیز اچھی پرووائڈ کی جاتی ہیں صحت کے حوالے سے، تو یہ بہت اچھا سسٹم ہو گیا ہے۔ میں صحت کارڈ کی طرف سے یہاں پہ ایڈمٹ ہوں، مجھے یہاں پہ بہت اچھی سہولت میسر کی گئی ہے۔ ہم عمران خان کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں۔
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि किसी भी कौम या मुआशरे की तरक्की का इन्हिसार कानून की हुक्मरानी पर है। कानून की पासदारी न करने वाले मुल्क गुर्बत और करप्शन का शिकार हो जाते हैं। इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग के इब्तिदाई सेशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि तबकाती निज़ाम तालीम से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। यकसा निज़ाम तालीम और तरक्की कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है। मज़ीद तफसील बताएंगे असद जार खान। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा मरगला डायलॉग में मईशत, सफारतकारी, कौमी सलामती के अमूर और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुख्तलिफ सेशंस शेड्यूल किए गए हैं। इफ्तिताई सेशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कानून की पासदारी न करने वाले मुल्कों को करप्ट क़यादत का सामना करना पड़ता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को भी नाअहल क़यादत का सामना रहा, जो दुनिया में पाकिस्तान के मस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने में नाकाम रही। डेमोक्रेसी भी उसी मुल्क में प्रॉस्पर करती है जिधर रूल ऑफ लॉ है। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो आप इलेक्शन करवाएं तो वही वॉरलॉर्ड्स और ताकतवर और क्रिमिनल्स ऊपर आ जाएंगे। करप्शन है, ये एक सिम्टम्स है रूल ऑफ लॉ ना होने की। जो चीज़ लैकिंग है हमारे मुल्क में वो है रिसर्च, और रिसर्च की जो सबसे बड़ी खूबी होती है ओरिजिनल थिंकिंग आती है एक माशरे में। वो मुल्क जो सबसे बड़ा कोलैटरल डैमेज था अफ़गानिस्तान की जंग में अमेरिका के साथ शिरकत करने की, उसी के ऊपर सारा नज़ला गिर गया। जब आपके मुल्क में रिसर्च नहीं होती तो और लोग आपको डिफाइन करते हैं बजाय आप अपने आप को डिफाइन करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि गैर मसावी तरक्की इंतशार का बायस बनती है। कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है कि हर तबके को तरक्की के यकसा मौके मिलें। इस्लामोफोबिया के मसले से निपटने और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को उजागर करने के लिए ज़रूरी है कि तहकीक के जरिए दुनिया को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। जो हिंदुस्तान कर रहा है इस वक्त, जिस तरह की रेसिस्ट गवर्नमेंट आई हुई और जिस तरह की फैशिस्ट पॉलिसी है उसकी, जो वो अपनी माइनॉरिटी से कर रहे हैं, जो वो कश्मीर में कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी मुसलमान दुनिया में ऐसे थिंक टैंक्स नहीं हैं जो कि प्रोजेक्ट कर सके इस चीज़ को। नेशनल सिक्योरिटी आपकी हो ही नहीं सकती जब तक एक इंक्लूसिव ग्रोथ ना हो। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन आ गया, बीच में उर्दू मीडियम और इधर दीनी मदरसे, 3 पैरेलल सिस्टम चल रहे हैं। ये जो सिस्टम इसलिए हुआ कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कभी भी रिसर्च नहीं हुई उन चीज़ों के ऊपर। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि इप्री हुकूमती शोबे में एक मुमताज थिंक टैंक है जो कौमी सलामती के अमूर में तहकीक के जरिए गिरां कदर खिदमात अंजाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि इप्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी कायम की गई है। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कायम मुकाम सद ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ ने मारगला डायलॉग में होने वाले सेशंस के हवाले से आगाह किया। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार के हवाले से किताब पेश की। किताब में अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों, कुर्बानियों और हालिया पेशरफ्त का अहाता किया गया है। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की और वज़ीर आज़म को सूबे की सियासी सूरत हाल, इंतज़ामी उमूर और पंजाब भर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात में पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल और गवर्नेंस की बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने इन इक़दामात को सराहते हुए मज़ीद बेहतरी लाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आज़म को अपने तुर्की और बरतानिया के दौरे के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने वज़ीर आज़म को बैनुल अक़वामी सतह पर हुकूमत की मौसमारी तब्दीली के लिए उठाए गए इक़दामात और मनसूबों की पज़ीराई के हवाले से भी आगाह किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुध 22 दिसंबर 2021 को शाम 4 बजे तलब कर लिया है। सदर ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तलब किया है। ये इजलास मौजूदा कौमी असम्बली का 39वां इजलास होगा। इत्तलात व नशरियात के वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि नवाज शरीफ के अदवार में पुलिस समेत इदारों को तबाह किया गया और जाली मुकाबलों में हज़ारों अफराद का मावराए अदालत कत्ल किया गया। मज़ीद तफसील बता रहे हैं मुअज़्ज़मुद्दीन। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि शहबाज शरीफ के दौर में पुलिस मुकाबलों को अरूज मिला और 5000 से ज़ायद अफराद को जाली मुकाबलों की भेंट चढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला बनने के बाद पुलिस को मुकाबलों के लिए फ्री हैंड दे रखा था। 5,500 लोग एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग में मारे गए हैं 1990 से लेके अब तक।
शहबाज शरीफ साहब के बारे में इस किताब में बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये लिखी गई है कि जाली पुलिस मुकाबलों को उनके दौर में हमेशा अरूज हासिल रहा। वफाकी वजीर ने कहा कि पुलिस के महकमे में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है और इसके लिए अदलिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अहमद फराज की तरफ से अपनी किताब को मरहूम सहाफ़ी असद शाही और जाहिद अली खान के नाम से मंसूब करना उनकी सहाफ़ती खिदमात का इतराफ़ है। मुझे बड़ी खुशी हुई अहमद कि आपने असद शाही और जाहिद के नाम ये किताब की है। दोनों बहुत बड़े रिपोर्टर्स थे। असद शाही से बिल्कुल मेरा भाइयों वाला ताल्लुक़ था, बदकिस्मती से बड़ी जवान उम्र में उनकी डेथ हुई और बड़ा मेहनती आदमी थे। और अगर क्राइम रिपोर्टिंग में किसी बंदे को इस तरह से मैंने देखा है तो वो असद शाही को देखा। और बिल्कुल अहमद फराज, मैं आपको मुबारक देता हूँ कि आपने अपनी किताब का बड़ा ही अच्छा इन दोनों के किया और जाहिद को और असद शाही को मेरा ख्याल है कि जो एक हदिया तबरीक पेश करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं था। वफाकी वजीर ने कहा कि सहाफ़ियों को एक हफ्ते में सेहत कार्ड देने जा रहे हैं, जबकि 50,000 से कम तनख्वाह वाले मीडिया वर्कर्स को अशियाए खुर्दनोश की खरीदारी पर 30% सब्सिडी देंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो आइन और कानून का एहतराम करेगा उससे बात की जा सकती है। तकरीब से मुसन्निफ अहमद फराज और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया और किताब के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी पर फवाद हुसैन लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये तकरीब मारूफ सहाफ़ी अहमद फराज की किताब इनकाउंटर कॉप्स की तकरीब रुनुमाई के हवाले से मुनक़िद की गई थी। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इस्लामाबाद पुलिस में मेरिट की बुनियाद पर भर्तियाँ की जाएंगी। रावलपिंडी में ज़ेर तामीर माँ बच्चा अस्पताल के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि माँ बच्चा अस्पताल और नाला लई मनसूबा हमारे दौर में मुकम्मल होगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि 23 मार्च परेड के दिन अगर कोई बदशगुनी हुई तो जिम्मेदार अपोजिशन होगी। माँ बच्चा हॉस्पिटल और नाला लई रिंग रोड ये इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के इसी दौरे हुकूमत में मुकम्मल होंगे। हम साइबर क्राइम्स पे साइबर विंग को स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं, उनके वसाइल में इजाफा करेंगे। 2000 पुलिसमैन जो हैं 509 FIA में और भर्ती कर रहे हैं। 23 मार्च को यहाँ परेड होती है। कोई बदमज़गी होगी तो कोई बदशगुनी होगी तो उसके जिम्मेदार ये होंगे। मैंने उनसे कहा कि आप 30 मार्च को आएं, अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो कानून आपको हाथ में लेगा। साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर शिबली फराज ने कहा है कि कोई भी मुल्क अकेले किसी भी मसले को हल नहीं कर सकता। मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें और वसाइल दरकार हैं। FIT कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही बड़े मसाइल का हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि FIT कॉन्फ्रेंस आलमी और मकामी IT रिसर्चर्स के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत साइंस और IT सेक्टर की तरक्की के लिए कोशां है। माहौलियाती आलूदगी, मोज़ी अमराज और फूड सिक्योरिटी बड़े मसाइल हैं। वज़ीर ममलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि इमरान खान पहले वज़ीर आज़म हैं जो इंसानी खिदमत के सबसे बड़े मनसूबे सेहत कार्ड का इजरा कर रहे हैं। अपने एक ट्वीट में फ़ारूक हबीब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब का हर ख़ानदान सालाना 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करवा सकेगा और किसी का प्यारा वसाइल न होने के बायस लाइलाज नहीं रहेगा। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि पंजाब के आवाम के लिए आज बड़ी खुशी का दिन है। पाक फ़िज़ाइया के शोबा ताल्लुकात आमा ने 1971 की पाकिस्तान भारत जंग के हीरो फ्लाइंग ऑफिसर नसीम निसार बेग शहीद तमग़ा जुर्रत के जंगी कारनामों पर मबनी मुख्तसर दौरानिए की दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी है। डॉक्यूमेंट्री में पाक फ़िज़ाइया के बहादुर सपूत की बेमिसाल जुर्रत, पेशावराना महारत और हरबी सलाहियतों को बेहतरीन अंदाज में उजागर किया गया है। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक फ्लाइंग ऑफिसर नसीम निसार बेग शहीद तमग़ा जुर्रत दिफ़ाए वतन के लिए हमा वक्त सीना सिपर रहे और वतन अजीज़ की खातिर किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेग न किया। उन्होंने जुर्रत व बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की और शहादत के अजीम रुतबे पर फाइज हुए। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। 25 दिसंबर 25 लाख नकद। BTV ला रहा है एक बार फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल, जिसमें आप अपनी 3 से 10 मिनट ड्यूरेशन की शॉर्ट फिल्म भेज सकते हैं और पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान आपका ईमान है। पाकिस्तान की कहानी अजीम इंसानी जज्बों, अक़दार और मिसालों की कहानी है।
इसके आम चेहरों वाले खास लोग, जिनमें से हर एक अपनी जगह एक हीरो है, हर एक कहानी है। आप अपनी शॉर्ट फिल्म बजरिया गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक greenbelief@ptv.com.pk पर भेजें। 3 बेहतरीन शॉर्ट फिल्म्स नकद इनाम की हकदार ठहरेंगी और 25 दिसंबर को PTV पर नश्र की जाएंगी। पहला इनाम 11 लाख रुपए, दूसरा इनाम 9 लाख रुपए, तीसरा इनाम 5 लाख रुपए। एंट्रीज भेजने की आखिरी तारीख 21 दिसंबर है। ब्रेक के बाद बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें जारी हैं और इस सिलसिले में मजीद $1 करोड़ 92 लाख अफगान मरकजी बैंक को मौसूल हो गए हैं। बैंक हुक्काम के मुताबिक इससे मुल्क में बैंकिंग सिस्टम को इस्तेहकाम हासिल होगा और लोकल करेंसी मुस्तहकम होगी। काबुल में अफगान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि हमारी कोशिश है कि अमरीकी डॉलर के मुकाबले में अफगानी करेंसी को मुस्तहकम किया जाए। तर्जुमान ने बताया कि ये रकम खुराक, सेहत और तालीम के शोबे पर खर्च की जाएगी। उधर तालिबान हुकूमत ने वाशिंगटन की जानिब से अफगान शहरियों को ज़ाती रकूम अपने मुल्क मुंतकिल करने की इजाज़त देने के फैसले का खैर मकदम किया है। अमरीका ने अफगानिस्तान के $10 अरब से ज़ायद के असास से मुंजमद कर रखे हैं और तालिबान हुकूमत बार बार मुतालबा कर रही है कि उन्हें इमदाद की बजाय गस्ब की गई दौलत वापस की जाए। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से निपटने के लिए किए जाने वाले इकदाम पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अफगान उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, तज्ज़ियाकार हैं नौखेज़ शाही। बहुत शुक्रिया नौखेज़ शाही, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया आज पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के इस प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा, अफगानिस्तान के मरकज़ी बैंक को जो $1 करोड़ 92 लाख मौसूल हुए हैं, ये रकम जैसे कहा जा रहा है कि बैंकिंग निज़ाम को मुस्तहकम करेगी, समझते हैं कितनी मददगार साबित हो सकती है ये? जी बिल्कुल, ये अफगानिस्तान के जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी बेहतरी के लिए जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं उनकी तरफ से दोबारा $1 करोड़ 92 लाख जो हैं वो मरकजी बैंक को मसूल हो गए अफगानिस्तान की। इससे पहले 2 एक साथ में जो है इंटरनेशनल डोनर्स जो हैं अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शनिंग जो एक फंड है उसके तहत ये जो है अफगानिस्तान, जिसमें 2 दिसंबर को इनको $16 मिलियन डायरेक्ट हैंड ओवर किए गए अफगान अथॉरिटीज़ को। इसके बाद 7 दिसंबर को एक किस्त जारी की गई थी, लेकिन उसकी एग्जैक्ट अमाउंट जो थी वो सामने नहीं आई थी। तो ये जो है बिल्कुल इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो अफगानिस्तान का जो बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल इस वक्त जो तबाह है उसमें बेहतरी के लिए ये अमाउंट जो है बड़ी अहम होगी और ये बड़ा रोल प्ले करेगी। क्योंकि इस वक्त अगर आप जानते होंगे डेफिनेटली कि अफगानिस्तान का जो बैंकिंग सिस्टम है वो बिल्कुल उस पर वो तबाह हो चुका है, क्योंकि जो उसकी बेहतरी है वो बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने दुनिया के साथ कांटेक्ट करना है और जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं उन्होंने अगर आपकी हेल्प करनी है, ये UN ने आपको कोई फंड देने हैं या बाकी दुनिया ने आपकी इमदाद करनी है, तो वो बैंकिंग चैनल के थ्रू देंगे। तो इस वक्त क्योंकि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को सबसे बड़ा मसला ये है कि उनकी इकानमी जो है बिल्कुल श्रिंक कर चुकी है, वो $484 मिलियन पर आ चुकी है $4 बिलियन से। तो मेरा ख्याल है कि उनका जो अभी सबसे बड़ा मसला था वो बैंकिंग सेक्टर की बेहतरी है, और ये जो उनको फंड्स आ रहे हैं ये डेफिनेटली उनकी करेंसी में जो गिरावट पिछले दिनों हमें देखने को मिली थी उसमें भी बेहतरी लाएगी और इनके बैंकिंग सिस्टम में बेहतरी के लिए काफ़ी अहम रोल प्ले करेगी। सही। अच्छा नौखेज़ शाही साहब, अगर अफगानिस्तान की हम मौजूदा सूरत हाल को देखें और फिर मौसम को देखें, शदीद सर्दी की वजह से भी वहाँ पर बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त अफगानिस्तान की आवाम को भी, हुकूमत को खुद भी मुश्किलात का सामना है। वाशिंगटन की जानिब से इस वक्त अफगान शहरियों को जो अपनी ज़ाती रकूम है अपने मुल्क में मुंतकिल करने की इजाज़त दी गई है, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत अहम बात है और ये बहुत अहम स्टेप है। लेकिन मैं जिस तरह आपसे अर्ज कर रहा था कि क्योंकि जितने भी डोनर्स हैं, जितने भी लोगों ने अफगान गवर्नमेंट की जो हेल्प करनी है या जितने UN की अपनी एजेंसीज काम कर रही हैं, उन्होंने जो अफगानिस्तान की हेल्प करनी है, अफगानिस्तान के लोगों की हेल्प करनी है, क्योंकि उधर वो इंसानी बहरान जो है वो बनता जा रहा है, उधर लोग जो है वो बेआसरा हैं इस वक्त। क्योंकि जिस तरह हमने पिछले दिनों वर्ल्ड फूड
की रिपोर्ट देखी तो उसमें भी यानी 95% लोगों को प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा अफगानिस्तान में इस वक्त। और इसके अलावा जो वर्ल्ड फूड ने $2 बिलियन की जो थी वो डिमांड की थी इंटरनेशनल डोनर से, वेस्ट से, अमेरिका से और रीजनल कंट्री से, कि वो अफगानिस्तान के लोगों को चाहिए। तो ये जो एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और ये इसके साथ जो इनको फंड्स रिलीज हुए हैं $19.2 मिलियन, मेरे ख्याल है इससे इनका बैंकिंग सिस्टम में बेहतरी आएगी और ये बैंकिंग सिस्टम इनका रीएक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे जो अफगानिस्तान से बाहर बैठे लोग हैं वो अपने बहन भाइयों की डायरेक्ट जो है हेल्प कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया नुखैर साही, आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से बात कर रहे थे। कैबिनेट आवर में आपने गुफ्तगू की और अफगानिस्तान में इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, इसके साथ साथ इंसानी सूरत हाल, इसको एक बहरान का सामना है। ऐसे में $1.92 करोड़ के इजरा किया जाना आलमी बैंक की जानिब से और आलमी इदारों की जानिब से यकीनी तौर पर खुशाइंद हो सकता है और ऐसे में ये बेहतरी के कुछ असबाब ज़रूर होंगे। आगे बढ़ेंगे, कुछ मज़ीद बात करें। आपको बताएं 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा का इजलास भूख, अफलास और शदीद माशी मुश्किलात में फंसे अफगानिस्तान की तरफ आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल कराने के सिलसिले में कलीदी अहमियत रखता है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं, जानेंगे सदफ अफजल की इस रिपोर्ट में। तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद पैदा होने वाली बहरानी सूरत हाल से अफगानिस्तान की निस्फ आबादी बेरोजगारी, कसाद बाजारी और समाजी अदम तहफ़्फ़ुज़ जैसे मौशी मुश्किलात का शिकार है। लिक्विडिटी की कमी के बाद जहां तनख्वाहों की अदम अदायगी से तालीम और सेहत जैसी सरकारी खिदमात बुरी तरह मुतासर हुई हैं, वहीं बैंकारी ज़राए भी गैर फाल हो गए हैं, जिससे इमदादी सरगर्मियों को शदीद धचका लगा है। एक जानिब अपने ही $9.5 अरब के ज़र मुबादला तक रसाई न मिलने समेत दीगर पाबंदियों ने अफगानिस्तान की मैशियत को बदतरीन बहरान में धकेल दिया है, तो दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी इमदाद रुकने से 90 लाख से जायद अफगानों को खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। अगर आलमी बिरादरी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर फौरी तवज्जो न दी तो बड़े पैमाने पर इंसानी हिजरत और दहशत गर्दी जैसे मसाइल जन्म ले सकते हैं, जिससे पाकिस्तान समेत पूरा खित्ता मुतासर होगा। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर IT सैयद अमीनुल हक की हिदायत पर यूनिवर्सल सर्विस फंड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वादी कुमराट, सवात के अहम सियाती मकामात समेत मुल्क भर के 19 अजला में ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए $11.5 अरब की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन USF बोर्ड डॉक्टर सुहेल राजपूत का कहना था कि सवात, दीरबाला, एबटाबाद और मानसेरा के अहम सियाती मकामात पर $2 अरब की लागत से ब्रॉडबैंड सर्विसेज के मंसूबों की मंजूरी दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने वन विंडो पोर्टल का बाकायदा तौर पर इजरा कर दिया है। अब सूबे में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद लोगों को NOCs, परमिट्स और रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए मुख्तलिफ सरकारी दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पोर्टल के जरिए सरमायाकार 11 मुख्तलिफ सरकारी महकमों की खिदमात एक ही विंडो पर हासिल कर सकेंगे। इस पोर्टल से रजिस्ट्रेशन फीस और टैक्सों की अदायगी से जुड़ी सहूलियात के अलावा इमारती नक्शों की मंजूरी की सहूलत भी अब ऑनलाइन दस्तयाब होगी। पोर्टल की मदद से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करने वाले तमाम सहूलियात और खिदमात घर बैठे हासिल कर सकते हैं। मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने एक बयान में कहा है कि रवा माली साल के पहले 4 माह जुलाई से अक्टूबर के दौरान फुटबॉल की बरामदात में 17% इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि जुलाई से अक्टूबर 2021 के दौरान $5 करोड़ से ज़ायद के फुटबॉल बरामद किए गए, जबकि गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में यह हजम $4 करोड़ 27 लाख का था। मुशीर तिजारत ने कहा कि जुलाई से अक्टूबर के दौरान स्पोर्ट्स मसनूआत की मजमूई बरामदात में 21% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और ये $10 करोड़ 51 लाख रहीं, जबकि पिछले माली साल के इसी अरसे में $8 करोड़ 70 लाख मालियत की स्पोर्ट्स मसनूआत बरामद की गई थीं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से स्टेट ऑफ कतर के कौंसल जनरल मिशाल एम अल अंसारी के कराची में मुलाकात और दोतरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और मुश्तरका मनसूबों समेत अहम मामलात पर उन्होंने तफसीली तबादला ख्याल किया। और आगे बढ़ेंगे और कुछ दीगर खबरों को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ पर आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के इब्तदाई और सानवी तालीम के वज़ीर शहराम तरकई ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के स्कूलों में सेकेंड शिफ्ट के लिए 23,500 नए असातिज़ा भर्ती किए जा रहे हैं। और पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर तालीम शहराम तरकई का कहना था कि सूबे भर के 26 लाख बच्चों को फर्नीचर फराहम कर रहे हैं। बच्चे अब टाट पर नहीं बल्कि फर्नीचर पर बैठकर तालीम हासिल कर सकेंगे।
इस तरह हल्का बस्ता एक्ट पर अमल दरामद के लिए सरकारी और निजी स्कूलों में मुहिम जारी है। शहराम तरकई ने कहा कि असातिज़ा की भर्ती के लिए ई ट्रांसफ़र का निज़ाम भी मुतारिफ करवाया गया है, जिससे असातिज़ा घर बैठे तबादले के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्कूलों में असातिज़ा और तलबा की हाज़िरी और पढ़ाई का अमल मॉनिटर करने के लिए स्मार्ट स्कूलिंग की तर्ज पर टैबलेट के ज़रिए निगरानी का अमल भी शुरू किया जा रहा है। कौमी इदारे सेहत ने कराची में सामने आने वाले ओमिक्रॉन केस की तस्दीक कर दी है। ओमिक्रॉन की तस्दीक जीनोम सीक्वेंसिंग मुकम्मल होने के बाद की गई। ओमिक्रॉन वायरस के रुझानात की शनाख्त के लिए मुश्तबा नमूनों की मुसलसल निगरानी की जा रही है। कौमी इदारे सेहत ने अवाम से पुरजोर अपील की है कि वो NCOC के जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं। मुल्क भर में NCOC की मुश्तरका मॉनिटरिंग टीमों के जरिए 8 से 18 दिसंबर तक ट्रांसपोर्ट के शोबे में वैक्सीनेशन के लाजमी निज़ाम के नफाज के लिए खुसूसी मुहिम जारी है। जॉइंट मॉनिटरिंग टीम ने कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर दाखिली और खारिजी रास्तों, बस स्टैंड्स, टोल प्लाजों और इंटरचेंजेस पर वैक्सीनेशन से मुतालिक अहकामात पर अमल दरामद का जायजा लिया। सिर्फ वैक्सीन शुदा और कोविड सर्टिफिकेट रखने वाले अफराद को ही सफ़र करने की इजाज़त दी जा रही है। मुहिम के दौरान वैक्सीन न लगवाने वाली गाड़ियों के अमले और मुसाफिरों को मौके पर वैक्सीन भी लगाई जा रही है। वैक्सीनेशन के लाजमी निज़ाम के नफाज पर अमल दरामद के लिए अब तक कुल 1,20,073 मुआयने भी किए गए हैं, जिसके दौरान 172 गाड़ियां जब्त की गई हैं और 37 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कुछ मज़ीद खबरें कैबिनेट आवर का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मैं ये चाहूँगा कि इसको ऑन करना चाहिए और इसको फैलाना चाहिए कि एक अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि वो पहले एक अच्छा इंसान ना हो। हम हर मसले का सोल्यूशन वक्ती तौर पर देखते हैं, इन द लॉन्ग टर्म नहीं देखते कि इसके असरात मुस्तकबिल में 30 साल बाद क्या निकलेंगे। हमारी हकीकी कदरें हैं, दीनी भी हैं और इंसानी भी हैं। उनको हमने अपने यूथ को पढ़ाना भी है और उन पर खुद अमल करके उनको दिखाना भी है। खुद जज बनने की कोशिश न करें। इंसाफ अदालतों ने देना है और आपने कानून पर अमल दरामद करना है, तो पाकिस्तान बेहतर हो सकेगा। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं बलूचिस्तान के 34 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। 5 रोज़ा मुहिम के दौरान 5 साल तक के तकरीबन 23 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो इमरजेंसी सेंटर के मुताबिक मुहिम में 11,084 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। इनके अलावा मोबाइल और फिक्स साइंस टीम्स भी पोलियो के कतरे पिलाएंगी। इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान बच्चों को विटामिन ए के कतरे भी पिलाए जाएंगे। रवा साल बलूचिस्तान से पोलियो का एक केस रिपोर्ट हुआ है। वालिदैन से अपील है कि अपने बच्चों को महफूज और सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए पोलियो टीम से ताउन करें और पोलियो के ड्रॉप्स ज़रूर पिलवाएं। इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल किए गए हैं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर में एक तकरीब के दौरान बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर सूबे में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने बताया कि 17 दिसंबर तक जारी रहने वाली इस मुहिम के पहले 2 रोज़ के दौरान वैक्सीन से महरूम रह जाने वाले बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जबकि मजमूई तौर पर 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ 70 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि 1,55,000 से ज़ायद पोलियो वर्कर्स कोरोना SOPs के हिफाजती इक़दामात के साथ घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। नाज़रीन, पोलियो के मरज़ के हवाले से और इसकी रोकथाम के लिए मुल्क भर में पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया है। 5 रोज़ा ये पोलियो मुहिम है। इसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग साहब। आप एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में कौमी राब्ताकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहजाद आसिफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, 5 रोज़ा मुहिम शुरू की गई है। 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ है। समझ रहे हैं कि ये इस साल की आखिरी मुहिम है और इसकी कामयाबी के लिए इकदाम बेहतर किए गए? जी, ये हमारी इस साल की आखिरी कैंपेन है और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि तकरीबन
1,70,00,000 بچوں کو ہم اس میں پولیو کے قطرے پلائیں گے، اور جس میں صرف پولیو کے قطرے ہی نہیں پلائے جائیں گے بلکہ ہم 6 ماہ سے لے کے 5 سال کی عمر تک کے بچوں کو وائٹامن اے کے قطرے بھی پلائیں گے تاکہ ان میں نمونیا اور میزلز سے بچاؤ کے لیے قوت مدافعت میں اضافہ کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس دفعہ پہلی دفعہ ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے پولیو ورکر گھر گھر جا کے جب پولیو کے قطرے پلائیں گے تو اسی ایریے میں ہماری موبائل کووڈ ویکسینیشن سینٹر بھی قائم کیے گئے ہیں تاکہ جو 12 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، 12 سال سے زیادہ، ان سب کو کووڈ کی ویکسین بھی لگائی جا سکے۔ لہذا آپ کے ٹی وی کے ذریعے سب سے درخواست ہے کہ جب ہماری پولیو کی ٹیمیں آپ کے گھر آئے تو ان کی رہنمائی کردہ جگہ پہ جا کے وہ کووڈ ویکسین بھی لگوا سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بہت معمول سے ہم دیکھتے ہیں چیزیں سامنے آتی ہیں کہ گھر میں بچے موجود ہوتے ہیں، پولیو کی ٹیم پہنچتی ہے یا پھر ویکسینیشن کے لیے، جسے این سی او سی نے لازمن کر دیا ہے، این سی او سی کی جانب سے ویکسینیشن کووڈ کی، پولیو ویکسینیشن کے حوالے سے بھی بچوں کے کارڈ بنائے جائیں جیسے ان کی حفاظتی ٹیکوں کے کارڈ بنتے ہیں تاکہ ان کو چیک کیا جا سکے۔ بہت سارے لوگ انکار کر دیتے ہیں گھر میں بچے موجود نہیں ہیں۔ جی، یہی ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جو بچے انکار کر دیتے ہیں ان میں وائرس بچ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ ان بچوں میں دوسرے بچوں میں دوبارہ پھیل جاتا ہے۔ تو ہماری جہاں پہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اور گورنمنٹ سب ایک پیج پہ ہیں اور مل کے اس بیماری کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمارے والدین کا بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ جب پولیو ورکر آپ کے گھر آ کر دروازے پہ دستک دیں تو ان سے پیار و محبت سے پیش آئیں اور یہ زندگی کی دستک ہے، اسے اپنے دل سے سنیں اور 2 قطرے پاکستان کے لیے بچوں کی صحت کے لیے ضرور پلائیں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کو کنونس کیا جانا چاہیے، اس میں آگاہی مہم کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ کس طریقے سے کنونس کیا جائے ان لوگوں کو جو کہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں اس حوالے سے کہ نہیں قطرے پلانے یا پولیو کی ویکسین نہیں لگوانی؟ جی، اس کے لیے ہم ہر لیول پہ کوشش کرتے ہیں، والدین کے ساتھ لوکل لیول پہ ان کے ساتھ سیشنز بھی کرتے ہیں جہاں پہ ان کو اسے آگاہی دلاتے ہیں کہ یہ کیوں اتنی اہم ہے، ویکسین سیف ہے اور 2 قطرے بچوں کی جان بچاتے ہیں اور صرف یہی ویکسین نہیں، دوسری ویکسین بھی پلانی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم ان علاقوں میں جہاں پہ دور دراز علاقوں میں جہاں صحت کی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں وہاں پہ اب ہم ہیلتھ کیمپس بھی لگا رہے ہیں تاکہ جب ہماری پولیو کی ٹیم وہاں جائے تو ہم صرف پولیو کے قطرے نہ پلائیں بلکہ دوسری صحت کی سہولتیں جس میں نیوٹریشنز اور چھوٹی موٹی بیماریوں کی ادویات بھی مہیا کی جا سکے۔ اس کے علاوہ ریڈیو اور ٹی وی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں تاکہ اس کے علاوہ ہم نے جو ریلیجس اسکالرز ہیں ہمارے ان کے ساتھ بھی ہم نیگوشیشن میں ہیں، وہ بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ اصل میں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہر مکتبہ فکر کے افراد کو مل کر ہر ایک کو اپنا اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ بالکل اب وقت کی یہ ضرورت ہے کہ اب لوگوں کو آگاہی بھی فراہم کی جائے اور ساتھ ساتھ لوگ اس ضمن میں اپنا کردار بھی ادا کریں تاکہ ہم پولیو فری پاکستان کا جو ایک خواب ہے اس کو پورا کر سکیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد آصف بیگ صاحب، اب ہمارے ساتھ موجود رہے اور پولیو کے قطروں کی حفاظت کے حوالے سے، ان کی اہمیت کے حوالے سے تفصیلی طور پر آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ آگے بڑھیں گے، کچھ دیگر خبروں کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آپ کو بتائیں جمعیت علماء امامیہ کے سربراہ علامہ غلام اکبر ساقی اور دوسرے علماء نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ انتہا پسندی کا نشانہ بننے والے سری لنکا کے شہری کے لواحقین کو جلد از جلد انصاف فراہم کیا جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات پیش نہ آئیں۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا کہ ملک کا آئین ہر کسی کو اس کے عقیدے اور مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے، تاہم کچھ شرپسند عناصر نے اس کے چہرے کو داغدار کر دیا ہے۔ سری لنکن شہری کے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے پاکستان اور اسلام کا چہرہ دنیا کے سامنے داغدار ہوا ہے۔ حکومت کی جانب سے لواحقین کے لیے مراد کا اعلان احسن اقدام ہے، تاہم انصاف کی جلد فراہمی ہی اس کا ازالہ ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک افواج اور محب وطن پاکستانیوں کی کوششوں سے پاکستان دہشت گردی سے پاک ہوا تھا۔ بڑھتی ہوئی شدت پسندی کا ابھی سے سدباب کیا جانا چاہیے تاکہ یہ ناسور نہ بنے۔
कुछ मजीद खबरें भी कैबिनेट आवर में शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नई उम्मीद, नई सोच, एक नया आगाज। हर सुबह होगी नई उमंग के साथ, सिर्फ मॉर्निंग एट होम पे, जहां होंगी ढेर सारी बातें और आपके फेवरेट सितारों से मुलाकातें। पकेगा रोज मजेदार खाना, दूर हो जाएगी मुश्किल कि आज क्या है पकाना। अब बात होगी आपके घर की, आपके दिल की। अब बात होगी हर रास्ते, हर मंजिल की। ब्यूटी, हेल्थ, फिटनेस या कोई और मामला, हमारे एक्सपर्ट्स चुटकियों में कर दें हल हर मसला। हर सुबह रहेगा हमारा साथ मॉर्निंग एट होम में, हर पीर से जुम्मा सुबह 10 बजे, ओनली एट PTV होम। और नाज़रीन, ब्रेक के बाद शामिल करेंगे हवाबाजी की सनत से मुतालिक एक अच्छी खबर। आलमी हवाबाजी की तंजीम के पाकिस्तान के दौरे और सिविल एविएशन के ऑडिट के बाद पाकिस्तानी जहाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे के इम्कानात रोशन हो गए हैं। सिविल एविएशन के डायरेक्टर जनरल खाकान मुर्तज़ा ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि शहरी हवाबाजी के बैनुल-अक़वामी इदारे इकाओ की जानिब से पाकिस्तान सिविल एविएशन की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। हवाबाजी की तंजीम का ऑडिट मुख्तलिफ वजूहात और कोरोना की सफरी पाबंदियों की वजह से कई बरस से इल्तिवा का शिकार था। ऑडिट की हतमी रिपोर्ट फरवरी में आने का इम्कान है। उन्होंने मीडिया को बताया कि सिविल एविएशन की 10 रोज़ा सेफ्टी ऑडिट के दौरान इकाओ के माहिरीन ने CAA के फ़्लाइट स्टैंडर्ड्स, एरोड्रोम और लाइसेंसिंग समेत 6 मुख्तलिफ शोबाजात का ऑडिट किया। इकाओ ऑडिट टीम ने इस्लामाबाद, कराची और लाहौर एयरपोर्ट्स का भी दौरा किया और रनवे, एयरपोर्ट सर्विसेज और कंट्रोल टावर्स का जायजा लिया। इकाओ के माहिरीन ने PIA की कराची और इस्लामाबाद प्रवास के जायजे के अलावा एयरलाइंस के दफातर और इंजीनियरिंग की सहूलतों का भी जायजा लिया। ऑडिट में पायलट्स के लाइसेंस का मसला अहम था, जिस पर बरतानवी इदारे से मुआहिदा तय पा गया है। इस हवाले से इम्तिहान के तरीक़ाकार पर बातचीत जारी है। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान मजहर नियाज राना की सदारत में गैर कानूनी फिशिंग, मकरान कोस्टल हाईवे पर चेक पोस्ट और सरहदी तिजारत के हवाले से कोयटा में अहम इजलास हुआ। इजलास में हक दो तहरीक के मुतालिबात और उनके हल से मुतालिक भी बातचीत की गई। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि गैर कानूनी ट्रॉलिंग को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। गवादर में पीने के साफ पानी की फराहमी का मसला हल कर दिया गया है और जारी मंसूबों को जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने गवादर में ज़ेरे तामीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफिस को गवादर मुंतकिल करने की भी हिदायत दी। और नाज़रीन, बहावल नगर में 36 एकड़ रकबे पर बनने वाले मेडिकल कॉलेज की तामीर का काम 90% मुकम्मल हो गया है। इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज़ादी का मतलब बेलगाम हो जाना नहीं है। आज़ादी का मफहूम ये नहीं है कि दूसरे लोगों और ममलकत के मफादात को नज़रअंदाज करके आप जो चाहें कर गुजरें। आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और पहले से कहीं ज्यादा। अब ये ज़रूरी है कि आप एक मुनज़्ज़म और मुस्बत कौम की तरह काम करें। इस वक्त हम सबको चाहिए कि तामीरी जज्बा पैदा करें।
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से रुख करेंगे बहावल नगर का, जहां 36 एकड़ रकबे पर बनने वाले मेडिकल कॉलेज की तामीर का काम 90% मुकम्मल हो चुका है। मकामी शहरियों ने इस मंसूबे में हुकूमती कोशिशों की तारीफ की है। रिपोर्ट कर रहे हैं शेर अली छीना। बहावल नगर में 36 एकड़ रकबा पर मेडिकल कॉलेज की तामीर का काम जारी है, जिस पर 2 अरब रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। मेडिकल कॉलेज को 2023 में मुकम्मल करके फंक्शनल किया जाएगा। जिला बहावल नगर और करीबी जिला पाकपतन के लोगों की तिब्बी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और तलबा और तालबात की बेहतरीन तिब्बी तालीम के लिए 2014 में ये मनसूबा शुरू किया गया था। मेडिकल कॉलेज में मेन बिल्डिंग, डॉक्टर हॉस्टल, बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल्स, मुलाजमीन की 60 रिहायशगाहें और एक कैफेटेरिया भी बनाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज की वजह से जी हम तो गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बहावल नगर के लिए ये एक बहुत बड़ी नेमत है। एक पसमानदा इलाके में मेडिकल कॉलेज का होना, मैं कहता हूँ कि ये गनीमत है हमारे लिए। हुकूमत ने इस मंसूबे को नज़रअंदाज कर दिया था और इस हुकूमत ने आकर जो इस पर तेज़ी से काम को जो अब इस पर जारी है और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 2023 तक जो है ये काम मुकम्मल हो जाएगा। इससे जो है जिला बहावल नगर के लोगों को जो है बहुत बड़ा फायदा हासिल होगा। बहावल नगर में मेडिकल कॉलेज बनने से मेडिकल के स्टूडेंट्स को सहूलत मिलेगी। शहरियों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज बनने से उनके बच्चे मेडिकल की बेहतर तालीम हासिल कर सकेंगे। शेर अली छीना, PTV न्यूज़, बहावल नगर। और अब आपको लिए चलेंगे चित्राल की हसीन वादिये कैलाश, जहां सालाना त्यौहार चौमूस का आगाज हो गया है। 15 रोज तक जारी रहने वाले त्यौहार में कैलाश की तीनों वादियों में जश्न का समा है। रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर खान। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले चित्राल की हसीन वादी कैलाश में कैलाश कबीले का सालाना मजहबी त्यौहार चौमूस का आगाज हो गया है। 15 रोज तक जारी रहने वाले त्यौहार में कैलाश की तीनों वादियों में जश्न का समा है। फेस्टिवल में कैलाश कबीले के लोग मुख्तलिफ मजहबी और कदीमी रस्मात अदा करते हैं। पहले रोज कैलाश कबीले ने साराजारी का त्यौहार मनाया, जिसमें दियार की टहनियों को यकजा करके आग लगाई जाती है और ऊंचा धुआं उड़ाने वाली टीम फातेह करार पाती है। मकामी लोगों ने सयाहों को चौमूस फेस्टिवल में शिरकत की दावत भी दी। हम सब बहुत इंजॉय करें और हम हमारे सारे बम्बुरेत के लोगों और जो बम्बुरेत के नहीं है उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो हमारे फेस्टिवल में आए और हमारे साथ इंजॉय करें। इस त्यौहार से लुत्फ अंदोज होने और इसको देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह कैलाश कबीले का रुख करते हैं।
सयाहों की सहूलियत के लिए खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी की जानिब से कैलाश वादी में कैंपिंग पार्ट्स लगाए गए हैं। कैलाश कबीले का ये मुनफरद चौमोस त्यौहार 22 दिसंबर को इख्तिताम पजीर होगा। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। और अब बात करेंगे कोयटा की, जहां बढ़ती हुई सर्दी में लोग रिवायती शॉलें ज़ेबतन किए दिखाई देते हैं। कोयटा से हसनैन गुल की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में सालों से लोग मौसम सरमा के आते ही गर्म शॉल्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। बलूची में भी इस्तेमाल होता है, पंजाब में भी जा रहा है, ये सराइकी साइड पे और पेशावर भी जा रहे हैं, सब इस्तेमाल करता है। शेर वाला भी इस्तेमाल करता है सर्दी में, और कबाइली भी इस्तेमाल करता है। सर्दियों में ये काफ़ी जो है गर्म होते हैं, तो यहाँ कोयटा का सर्दी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हम लोग हर सर्दियों में ये ख़रीदते हैं और ये ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होते हैं हमारे। ये ट्रेडिशनल शॉल्स खूबसूरत दिखने के साथ साथ नहायत गर्म भी होती हैं, जो कोयटा के मौसम में लिबास का अहम जुज़ दिखाई देती हैं। दहाइयों से चलता हुआ गर्म शॉल्स का रिवाज आज भी कोयटा में कायम है। पठानी शॉल हो या बलोची, पश्मीना हो या वेलवेट, लोग खरीदारी करते हुए दिखाई देते हैं। हसनैन गुल, PTV न्यूज़, कोयटा।